everyone, as you know that we were doing our units kinematics, and let's have a quick recap of yesterday's lecture. In the last lecture we have done about the terms, first concept of kinematics, that means terms we have studied. We have learned about distance and displacement and the difference between distance and the displacement. Then we have covered speed and the velocity, acceleration, types of speed, velocity, acceleration, and we were doing the last term, that is equation of motion for uniform acceleration. And we have covered two equations. V is equal to u plus at we have covered. Second, we have derived the equation S is equal to ut plus half at square. Now in our today's video, let's move towards our third kinematic equation for motion, and that is equal to v square minus u square is equal to 2as. This equation we will derive today. So for this equation's derivation, let us take our first equation. First equation is v square, v is equal to u plus at. This is our first equation of kinematics for motion. We will do squaring on both the sides. हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे एंड वी विल गेट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2uat. This is the equation. Now we will do v square is equal to u square plus we will take 2a from both the sides as common. 2a if we will take common, then we will get, यहाँ से we will left with ut plus यहाँ इस टर्म से हमें मिलेगा हाफ a t स्क्वायर. ये आ गया हमारे पास. क्या किया हमने, इन दोनों टर्म्स में से 2a को कॉमन ले लिया. 2a को अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से we will left with u and t. ut आ गया, यहाँ पे 2 है नहीं तो 1/2 left with a and t square. And you know this is the result of second equation, that is equal to the s equal to the ut plus half at square. So in place of this we will replace s. So it becomes v square is equal to u square plus 2as. And this is the third equation. In this way we have derived all our three kinematics equation, that is v equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and third is, हम यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, इस u को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो it would become v square minus u square is equal to 2as, and this is the third equation of kinematics. एक चीज जो आपको यहाँ पे देखनी है वो ये देखनी है कि ये जो s यहाँ पे गिवन है सेकंड इक्वेशन में और थर्ड इक्वेशन में, ये डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट है. मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, ना कि डिस्टेंस है. सो डोंट कंफ्यूज s विद डिस्टेंस. दिस इज नॉट डिस्टेंस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट. अब मैंने आपको बताया था कि टर्म्स के कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझना है, बिकॉज ये जो टर्म्स है इन्हीं के कंसेप्ट को यूज करते हुए इन्हीं के रिजल्ट्स को हम अप्लाई करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन. देन ओनली वी कुड अंडरस्टैंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन. अब जो भी कंसेप्ट हमने टर्म्स के अंदर स्टडी किया है, चाहे वो ये डेफिनेशंस हो, चाहे आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन हो, उसी के सारे कंसेप्ट को हम स्टडी करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स में, और स्टडी करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन. और यहाँ पे जो ये आपकी इक्वेशंस है, इसी के रिजल्ट को यूज करते हुए हम यहाँ से कुछ कंसेप्ट को स्टडी करेंगे. और आपको पता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं कि स्ट्रेट लाइन के अंदर कुछ ऐसे, हम मेनली कुछ एग्जांपल्स ऐसे लेते हैं जो फ्री फॉल से रिलेटेड होते हैं. और आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल
ऊपर से नीचे गिरता है या नीचे से ऊपर की तरफ हम उसको फेंकते हैं तो उसके ऊपर एक ही फोर्स लगता है, दैट इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अब हमें स्टडी करना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स, दैट इज योर टर्म्स, एंड द फोर्थ main part is equations of motion for uniform acceleration, and these are the three equations of kinematics for uniform acceleration. Now move towards the second part, that is motion in straight line. Next is motion in straight line. जब भी हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे फ्री फॉल की। तो फ्री फॉल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे सोल्व करते हैं, और जो भी एग्जांपल्स हमें मिलते हैं वो मोस्टली फ्री फॉल से रिलेटेड होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री फॉल होता क्या है? फ्री फॉल जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो ऑब्वियसली दैट ऑब्जेक्ट वुड बी इन द स्टेट ऑफ मोशन, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है मोशन में होता है, और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लगता है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इन दैट केस उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं फ्री फॉल। और यहाँ पे हम जो अभी हमने जो अपनी तीनों इक्वेशंस यूज की, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इज इक्वल टू s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पे इस फ्री फॉल के केस में हम अपने ये तीनों इक्वेशंस यूज करेंगे। क्यों करेंगे ये तीनों इक्वेशंस यूज? बिकॉज these three equations are related to the uniform acceleration, or we can say uniform accelerated motion। अब जो फ्री फॉल होता है, क्या फ्री फॉल का केस भी के अंदर भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है, या फ्री फॉल का केस भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है? अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है पहले तो वो देखते हैं, और फिर हम देखेंगे कि फ्री फॉल भी अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है तो उसमें हम ये इक्वेशंस क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। देखो फ्री फॉल, सपोज ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपने फ्रीली नीचे की तरफ फॉल कराया, ये यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल होगा, ठीक है। अब इनिशियली जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फ्रीली फॉल कराते हो तो इनिशियल में उसकी वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू द 0। अभी आपने 1 सेकेंड के बाद, आफ्टर 1 सेकेंड आपने देखा और इसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। अब 2 सेकेंड के बाद जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया तो इसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद जब ये आया यहाँ पे, इतना डिस्टेंस जब इसने कवर कर लिया, दैट टाइम इसकी वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड, और इस तरीके से ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो आप एक चीज देखिए, 1 सेकेंड के अंदर जो इसकी वेलोसिटी में चेंज आया वो कितना आया, 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरे सेकेंड में जो इसकी वेलोसिटी के अंदर अगेन चेंज आया 20 माइनस 10, अगेन 10 मीटर पर सेकेंड। अगेन जो थर्ड सेकेंड है उसके अंदर जो वेलोसिटी में चेंज है दैट इज अगेन 10 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स इन एवरी 1 सेकेंड, और वी कैन से आफ्टर एवरी 1 सेकेंड इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रही है। दैट मीन्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी का चेंज है, आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज v माइनस यू ओवर टी। इस एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तभी बोल सकते हैं जब ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी के अंदर चेंज है वो हर बार क्या हो, वो हर बार कांस्टेंट हो, किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब हर बार जो टाइम चेंज हो रहा है वो भी 1 सेकेंड से टाइम बढ़ रहा है,
और जो वेलोसिटी में चेंज है मतलब इंक्रीज है वो भी कितना हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से उसकी वेलोसिटी क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है. दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट. हाउ मच 10 मीटर पर सेकेंड इन हाउ मच ऑफ टाइम एवरी टाइम इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज 1 सेकेंड. एक सेकंड के बाद अगेन कितना वेलोसिटी इंक्रीज कर गई 10 मीटर पर सेकंड. अगेन 1 सेकंड में कितना इंक्रीज कर गई 10 मीटर पर सेकंड. अगेन 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी इंक्रीज कर गई 10 मीटर पर सेकंड. दैट मीन्स इक्वल change in velocity in equal interval of time and that gives us uniform acceleration. क्योंकि यूनिफॉर्म ये जो फ्री फॉल है that is also a case of uniform acceleration. So ये जो तीनों इक्वेशंस अभी हमने निकाली काइनेमेटिक्स की उन तीनों इक्वेशंस को हम फ्री फॉल में क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं. So आप समझ गए होंगे what is uniform acceleration. That means every time equal change in velocity in equal interval of time. अब फ्री फॉल के केस में देखते हैं इनको कैसे हमें अप्लाई करना है. अब फ्री फॉल का फर्स्ट सिचुएशन हम लेते हैं. फर्स्ट सिचुएशन हम लेंगे और एक लेंगे सेकेंड सिचुएशन. फर्स्ट सिचुएशन में क्या करेंगे सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड इट इज मूविंग डाउनवर्ड. दैट मीन्स इसका जो मोशन है उसकी डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड में. इनिशियल वेलोसिटी जो है आपको पता होगा 9th में भी आप पढ़ चुके होंगे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0. सपोज ये मेरे पास एक मार्कर है. अभी आई एम होल्डिंग दिस मार्कर. इस टाइम पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसी है अभी ये रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी कैसी होगी 0 होगी. जैसे ही ये फॉल करेगा इसकी वेलोसिटी क्या करेगी 0 से इंक्रीज करने के लिए इंक्रीज करेगी. तो ये क्या हो रहा है इनिशियल वेलोसिटी 0 है. जो इसमें मूवमेंट है वो नीचे की तरफ है. इसका मोशन डाउनवर्ड है. दैट मीन्स इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो भी डाउनवर्ड करेगी. अभी ये यहाँ पे है धीरे 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 ये नीचे की तरफ आ रहा है. तो आपको पता है जब भी ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है एवरी टाइम इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. तो हम क्या कहेंगे और इसका मोशन भी डाउनवर्ड है और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है फोर्स किसका यहाँ पे मैंने बताया था फ्री फॉल में सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा और वो होगा ग्रेविटी का फोर्स. तो जो इसमें जो फोर्स है ग्रेविटी का वो भी डाउनवर्ड है. मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन भी डाउनवर्ड है. जो इस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है वो भी डाउनवर्ड है. तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी और वो जो एक्सेलरेशन यहाँ पे होगी उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो यहाँ पे हम a को रिप्लेस करेंगे या जो एक्सेलरेशन होगी दैट वुड बी इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट इज g. और हम यहाँ पे प्लस ऑफ g लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन और जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है दोनों की डायरेक्शन सेम है और कंटिन्यूअसली वेलोसिटी क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है. तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो सिंपली हम यहाँ पे ए को रिप्लेस कर देंगे. एक्सेलरेशन हियर इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब दूसरा सिचुएशन लेते हैं. सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट and we have thrown this object in upward direction. Upward direction with initial velocity with some initial velocity. Suppose इसकी कुछ initial velocity है कुछ भी हो सकती है. अब आपको पता है इसका जो मोशन है ऑब्जेक्ट के अंदर जो मोशन होगा उसकी डायरेक्शन है अपवर्ड. ये एक हाइट तक ऊपर जाएगा उसके बाद ये क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा. कुछ हाइट कवर ये करेगा उसके बाद ये क्या आ जाएगा रेस्ट पे आ जाएगा और वापस इसकी डायरेक्शन क्या होगी डाउनवर्ड. बट हमें ये देखना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तो क्या होता है. आपको पता है इनिशियल में इसकी कुछ वेलोसिटी होगी धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी डिक्रीज होती जाएगी. क्यों क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो तो अपवर्ड है लेकिन इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है
ड्यू टू द ग्रेविटी दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे मोशन और फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसलिए यहाँ पे जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगी दैट इज माइनस ऑफ जी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। क्योंकि वेलोसिटी जो है वो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी और फाइनल वेलोसिटी कम होती जाएगी और जब ये एक सर्टेन हाइट पे पहुंच जाएगा वहां पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होती जाएगी, जीरो। तो आपको पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू इज अपॉन में t, और v माइनस यू यहाँ पे ये जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी की कुछ पॉजिटिव वैल्यू है तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो एक्सेलरेशन होगी वो नेगेटिव होगी। दैट मीन्स यहाँ पे केस होगा किसका, रिटार्डेशन का। रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन, सो वी वुड रिप्लेस a बाय नेगेटिव माइनस ऑफ g, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगी वो रिटार्डेशन होगी। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, सो इन दिस सिचुएशन वी विल टेक माइनस ऑफ g। एक्सेलरेशन की जो ड्यू टू ग्रेविटी है उसके सामने हम साइन लेंगे माइनस का। तो आप ये दोनों इक्वेशन समझ गए हैं, दोनों सिचुएशन समझ गए हैं। अब इन दोनों के लिए हम क्या करेंगे, हम जो हमने यूनिट्स अभी डेरिवेशंस की थी काइनेमैटिक्स के लिए, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इन तीनों इक्वेशंस में हम फर्स्ट सिचुएशन के लिए रिजल्ट को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। So first situation would become v is equal to u plus a को हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे g से। So ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इज s is equal to ut plus half gt square, and third equation is v square minus u square is equal to 2gs। तो तीनों इक्वेशंस के लिए आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे u को जीरो भी पुट कर सकते हो। नाउ वी कम टू द सेकेंड सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन में यू नो दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन। एज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन कंटिन्यूअसली इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग, and velocity is not only changing, velocity is decreasing, and at one situation or we can say at a particular height its velocity becomes zero. For this we will replace a by minus of g. So the first case or the first derivation of kinematics we get v is equal to u minus gt. Second is s is equal to ut minus half gt square, and third is v square minus u square is equal to minus of 2gs। अगेन यहाँ पे भी आप u को जीरो पुट कर सकते हो। नाउ दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ काइनेमेटिक्स इक्वेशन इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जो आपका फ्री फॉल है वो भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन है, और जो कैसा मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है। अब क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स के अंदर हमें मेनली इन जो डेरिवेशंस है या डेरिवेशंस के रिजल्ट है या थ्री काइनेमेटिक्स जो इक्वेशन है इनके रिजल्ट पे कई बार न्यूमेरिकल्स हमसे पूछ लिए जाते हैं। न्यूमेरिकल हमसे कई और छोटे छोटे स्मॉल कंसेप्ट पे से हम कई बार न्यूमेरिकल फेस करते हैं, एंड वन सच कंसेप्ट इज डिस्कस कर लेते हैं। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है वो फ्रीली ऊपर से नीचे की तरफ फॉल हो रहा है और आपसे पूछा जाए कि बताओ 7th सेकेंड के अंदर उस जो ऑब्जेक्ट है जो फ्री फॉल नीचे गिर रहा है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7 सेकेंड। अगर मैं इसको यहीं पे रिप्लेस कर दूं कि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है जो ऊपर से नीचे गिरा, अब इसने फर्स्ट 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 सेकेंड में इतना किया, 3 सेकेंड्स में इतना किया। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इसका जो डिस्टेंस है ट्रेवल करने का वो भी बढ़ता जाएगा। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि
फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड वो सेकेंड के लिए आपसे पूछ सकता है, थर्ड सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो पूछ सकता है, फोर्थ सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आपसे पूछ सकता है। न्यूमेरिकल्स ऐसे पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। अब ये nth सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करने का कंसेप्ट है, इसको जरा समझते हैं। इसके लिए यही केस ले लेते हैं। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ये फ्रीली नीचे गिर रहा है। सपोज इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन ये आप देख चुके हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस होगा। यहाँ पे जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड जाएगा, इसकी वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और ऐसे होगा इसका स्ट्रेट लाइन के अंदर डाउनवर्ड मोशन। अब सपोज यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट पहुंचा तो इसने जो टाइम लिया वो 1 सेकेंड का लिया, ठीक है। सेकेंड 2 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, दैट मीन्स ये 1 सेकेंड और इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट ने जब टाइम था कितना n सेकेंड्स, तो n सेकेंड्स के अंदर इस ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो दिस इज द टाइम, और वी कैन से दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स। ये n का मतलब यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n की जगह 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, कुछ भी, मतलब 60 सेकेंड में इतना डिस्टेंस। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये बोलेंगे कि हम क्या करते हैं, जो ये n सेकेंड है उससे एक पहला सेकेंड ले लेते हैं। दैट मीन्स n से पहला क्या होगा, n-1। तो ये वो पोजीशन ले लेते हैं कि यहाँ जब ऑब्जेक्ट आया तो उस टाइम पे टाइम कितना था, n-1 सेकेंड। मतलब अगर ये पूरा डिस्टेंस 7 सेकेंड में ट्रेवल हुआ है तो यहाँ तक ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया होगा, 7-1, दैट मीन्स 6 सेकेंड। तो ये हमने वो केस ले लिया, n-1 सेकेंड्स के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है ये वो ले लिया जब टाइम कितना था, n सेकेंड्स। तो अब हम क्या देखेंगे कि दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स, या फिर डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वुड बी इक्वल। तो कैन वी से कि दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स and this is the distance traveled in n-1 seconds. That means ये 6 सेकेंड्स में ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है और ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है 7 सेकेंड्स में। तो मैंने इसको लिख दिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स, और इसको लिख दिया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड्स। तो अब क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, कि जो 7th सेकेंड के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो कितना होगा। तो आप सिंपली